Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss the second part of chemical equilibrium chapter, that is part B, and it is ionic equilibrium. So listen, in this part of this chapter, first we will discuss what is terminology in ionic equilibrium. So first we will discuss some terms in ionic equilibrium. So first term is what is ionic equilibrium. So listen, ionic equilibrium, it is the equilibrium which exists between the ions of an electrolyte and any electrolyte or salt. It means आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा एसिड भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल HCl, ये हमारा सॉल्ट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल NaCl. इट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट और उसके आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो उसे ही कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम. इट मीन्स वी कैन से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रोलाइट एंड दियर आयंस. इट मीन्स किसी इलेक्ट्रोलाइट और आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा वही इक्विलिब्रियम बोला जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम. सो HCl and NaCl are electrolyte and these are ions. So this is called as ionic equilibrium. Now we will discuss second term and it is electrolyte. So what is electrolyte? So electrolyte are those compound which may be an acid, which may be a base, which may be a salt. इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोई एसिड भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है और कोई सॉल्ट भी हो सकता है. सो लिसन, इफ वी टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन लिसन, इलेक्ट्रोलाइट may be classified into three type. First one is weak electrolyte, strong electrolyte, and neutral electrolyte. So weak electrolyte, it may be weak acid or weak base. It means you can classify weak electrolyte by two type. First one is weak acid and second one is weak base. It means all the weak acid and weak base acts as weak electrolyte. So what are strong electrolyte? It is also classified into two type, strong acid and strong base. Neutral electrolyte, that is salt. Any salt is called as neutral electrolyte. Now what are the examples of weak electrolyte? So first we will discuss the examples of weak acid. So we all know that examples of weak acid is acetic acid, that is CH3COOH,
formic acid, that is HCOOH. Third, hydrocyanic acid, that is HCN, and other organic acid are acts as weak acid. It means जितने भी organic acid होते हैं which contain carbon, it means ऐसे acid जिनमें कार्बन होता है वो सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वीक एसिड की तरह। वीक एसिड का आयनाइजेशन जनरली बहुत कम होता है। इट मींस वी कैन से दे गेट लेस आयनाइज, ये बहुत कम आयनाइज होते हैं, अप्रॉक्स 10 to 15%। नाउ व्हाट आर वीक बेस, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस। वीक बेस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल NH4OH, this is the example of weak base। Aluminium hydroxide, AlOH का whole of thrice, so they also less ionized when they are dissolved in water। इट मीन्स जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इनका आयनाइजेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, एंड इट इज अबाउट 10 to 15%। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, HCl, HNO3, H2SO4. So all these are the examples of strong acid, and strong acid are highly ionized. It means their ionization will be high. High ionization and it is approximately 100%। ये approximately कितना होते हैं आयनाइज, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है ये 100% आयनाइज हो जाते हैं, लगभग 100%। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर KOH, NaOH, MgOH का होल ऑफ ट्वाइस, CaOH का whole of twice। Now we will discuss the examples of salt। Now we will discuss the example of salt। So salt like NaCl, MgSO4, so they acts as neutral electrolyte, and KCl, ATC। So all these are the types of electrolyte, or we can say this is the classification of electrolyte। So electrolyte may be weak electrolyte, it is less ionized when it is dissolved in water। Strong electrolyte, it is highly ionized, approximately 100% ionization when it is dissolved in water। What is neutral electrolyte? So neutral electrolyte will be a salt। Now we will discuss degree of dissociation। Now we will discuss the third term, degree of dissociation। अब हम लोग थर्ड टर्म डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? So degree of dissociation, this is the third term, degree of dissociation। So listen,
it is represented by alpha. So always remember alpha lies in between 0 to 1. इट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू होती है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा जो है 0 पर टेंड करता है। इट मीन्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। इट मीन्स अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 0 को टेंड करेगा। किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा टेंड्स टू 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 की तरफ टेंड करता है। एंड लिसन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच अमाउंट द आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इट मीन्स किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करने पर वह कितना डिसोसिएट हुआ है, वो 80% डिसोसिएट हुआ है या 20% डिसोसिएट हुआ है, तो उसे हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में या अल्फा के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोला जाए कि हमारा NaCl जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका डिसोसिएशन होता है फॉर एग्जाम्पल 80%। कितना डिसोसिएशन होता है इसका? 80%। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू दी है 80%, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80%? तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100, दैट इज 0.80। इट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू यहां दी गई है वो कितनी दी गई है? 0.80। सो लिसन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इट मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग परसेंटेज के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट्स फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, or we can say number of dissociated moles, number of dissociated moles of an electrolyte divided by total number of moles of an electrolyte। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे 100 और हमारा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स है इलेक्ट्रोलाइट के 50, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, दैट इज 0.5। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ लाई करती है? 0 से 1 के बीच में। और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 50%। ये कितनी है? 50%। सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगला टर्म है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सो लिसन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, it is represented by small h। तो स्मॉल h या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? सो लिसन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन कब होता है? जब हम किसी सॉल्ट
को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं अल्फा, कि हमारा कितना सॉल्ट आयनाइज हुआ है। सिमिलरली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये किसके लिए दिया जाता है टर्म? ये किसी सॉल्ट के लिए दिया जाता है। इट मीन्स जब हम किसी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, when hydrolysis of salt occurs, it means जब salt की क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। Then we all know that when any salt is hydrolyzed, for example अगर NaCl salt की हाइड्रोलिसिस करें, तो हमें पता है जब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन बोली जाती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या बोली जाएगी? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करने पर होता क्या है? एक एसिड बनता है और दूसरा बेस बनता है। इट मीन्स H2O को अगर हम इस तरह से लिख दें HOH, then there will be formation of HCl plus NaOH. It means तब हमारा क्या बनेगा? एक एसिड बनेगा और दूसरा बेस बनेगा। तो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करने पर हमारा एसिड और बेस बनता है। अब बात आती है सॉल्ट कितना हाइड्रोलाइज हुआ है। इट मीन्स हाउ मच सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज। इट मीन्स सॉल्ट हमारा कितना हाइड्रोलाइज हुआ है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इट मीन्स ये भी बिल्कुल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ही तरह है, बट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसमें डिस्कस किया जाएगा? व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अकर्स। इट मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में, इट मीन्स जब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस की जाएगी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल h. इट्स वैल्यू इज आल्सो लाइज इन बिटवीन 0 to 1। ये भी हमारी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 0 से 1 के बीच में। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड मोल्स ऑफ अ सॉल्ट। इट मीन्स हमारे सॉल्ट के कितने मोल हाइड्रोलाइज हुए हैं, अगर उसको हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो हमको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h. सो दिस इज द फोर्थ टर्म इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट। So what factors that affect the degree of dissociation of an electrolyte? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सो लिसन, फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारा इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो हमारा डिसोसिएशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, एंड इट विल गिव CH3COOH, it will give CH3COO minus ion plus H plus ion when it is dissolved in water, or we can say when aqueous solution of acetic acid is taken, then it will give 2 ions
acetate ion and H plus ion. So when we rise the temperature of this electrolyte, it means अगर हम temperature को बढ़ाएं, it means if we increase the temperature, then degree of dissociation alpha increases. It means तब जो हमारा degree of dissociation alpha होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Second factor is on dilution. Dilution means addition of water in weak electrolyte or any electrolyte. It means किसी इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम वाटर को बाहर से ऐड करें तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो हमारा अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है. थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है. इट मीन्स वो वीक होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा. इट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कम होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा. क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट लेस आयनाइज होते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है. अगर लेस आयनाइज होंगे या लेस डिसोसिएट होंगे तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, क्योंकि डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. तो डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स जब कम हो जाएंगे फार्मूले में, न्यूमरेटर पार्ट हमारा कम हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी क्या होगा, कम हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अप्रोक्सीमेट 100% आयनाइजेशन होता है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है. नाउ फोर्थ वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट को अभी किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है. वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ऐसे सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है तो वहां डिसोसिएशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है. देयर विल बी मोर डिसोसिएशन. अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी. बट अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज कैपिटल के, ये अगर कम है, इट मीन्स लेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डिसोसिएशन भी क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट का. सो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज. अगर डिसोसिएशन घट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी. होता क्या है, जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, दैट इज वाटर, वाटर का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट AB को आसानी से, या AB के बीच के बॉन्ड को आसानी से क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, और इसको तोड़ देगा किसमें, A+ और B- में. इट मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का किसी भी सॉल्वेंट का ज्यादा है, फॉर एग्जांपल वाटर, और हमने कोई AB इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, या इनके आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे. या हम ये कह सकते हैं AB के बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, इस सॉल्वेंट वाटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उसकी प्रेजेंस में जो A सिंगल बॉन्ड B है ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारे आयंस क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे. नाउ लास्ट फैक्टर इज कॉमन आयन इफेक्ट. So what is common ion effect? So listen, when dissociation of electrolyte occurs in the presence of common ion, it means जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में होता है, फॉर एग्जाम्पल KOH
का डिसोसिएशन हमने किया, फॉर एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH का डिसोसिएशन हमने किया, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COO माइनस और H प्लस आयन। और इसका हमने डिसोसिएशन जो किया है उस किसकी प्रेजेंस में किया है, CH3COO K की प्रेजेंस में। तो ये दो आयन कौन सा देगा, एसीटेट आयन और K प्लस आयन। इट मींस जो एसीटेट आयन है वो है क्या, कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा CH3COOH, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका डिसोसिएशन क्या होता है, कम हो जाता है। इट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। इट मींस कॉमन आयन की प्रेजेंस में जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू।